Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, guys. Hope you're all doing well and doing great. Today we are back with another video and we're going to talk about structure of seed. Structure of seed आप maybe 5 class से 6 class से पढ़ते हुए आ रहे हैं. Now if you are in a grade 10 and you have to study it again, so आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं. So let's jump into the video. First thing first, structure of seed में अगर देखें तो ये जो outer covering होती है, this outer covering is called as testa or the seed coat. And what is the function of this testa or seed coat? The testa or the seed coat function is to provide protection to the seed. Seed को protection provide कर रहा है. हर outer covering आप देखते हैं कि plant के अंदर cell wall जो है वो covering provide कर रही है. हार्ट को एक लेयर प्रोटेक्ट कर रही होती है. इसी तरह सीड को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए देयर इज एन आउटर कवरिंग एंड दैट आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज सीड कोट विच इज़ हार्ड. आप वॉलनट की एग्जांपल ले सकते हैं, आप पीनट की एग्जांपल ले सकते हैं. तो इनकी जो आउटर कवरिंग होती है, जिसे छिलका भी हम कहते हैं, वो एक बेसिकली उसको हम सीड कोट कहते हैं, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन, विच प्रिवेंटेड फ्रॉम द डैमेज, विच प्रिवेंटेड फ्रॉम द इंजरी. उसके बाद ये जो इनसाइड पोर्शन होता है, दैट दिस इनसाइड पोर्शन इज कॉल्ड एज द कॉटिलेडन. अक्सर आप बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉटिलेडन एंड डाइकॉटिलेडन. सो द कॉटिलेडन इज बेसिकली अ फूड स्टोरेज पार्ट, जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह स्टोर होते हैं, जहाँ पर इस एम्ब्रियो प्लांट, इस बेबी प्लांट ने ग्रो जो करना होता है, उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलने होते हैं वो इस कॉटिलेडन से मिलते हैं. वो इस फूड स्टोरेज पार्ट जो है वो ये प्रोवाइड करता है सारी फूड, इस कॉटिलेडन, इस एम्ब्रियो प्लांट को. This green part is basically called as the embryo. Embryo is basically the young plant which further develops into a new plant. ये जो young plant है, इसने further एक new plant में, एक fully plant में, एक mature plant में develop होना है. तो वो basically वो plant कहाँ से arise होता है? वो plant इस seed के अंदर, ये जो small plant है, जो young plant है, यहाँ से arise होता है. इसके दो पार्ट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज द रेडिकल, जिससे रूट अराइज होती है. द अदर पार्ट इज कॉल्ड एज द प्लोम्यूल, जहाँ से शूट अराइज होती है. शूट इज बेसिकली द स्टेम्प एंड रेडिकल से रूट अराइज होती है. रूट इज बेसिकली द जड़, जिसे जड़ें भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं. और रूट्स के ऊपर जो स्मॉल टाइनी पार्ट्स होते हैं, दैट इज द रूट हेयर्स. So the roots, उनके function हम अभी discuss नहीं करेंगे. So the other thing is that we have to discuss in this topic is basically the micropyle. Micropyle is a small opening जिससे water enter होता है या nutrients वगैरह enter होते हैं और seed उनको absorb करता है और further ये root और shoot जो है वो इसको rise करने में help करते हैं. So after the micropyle, there is another structure that is called as the hilum. Hilum is basically the small scar which is above the or below the cotyledon, that is the present. और इस hilum के through भी nutrients वगैरह जो हैं वो enter होते हैं और वो nutrients जैसे ही seed absorb करेगा तो वो nutrients absorb करने के result में seed germination start कर देगा. Hopefully all these major parts are cleared. We have discussed about the major part. One is seed coat, which provide protection, prevent it from the damage, prevent it from the dehydration. The other part is we have discussed is the cotyledon, which is basically the food storage part, which provide nutrients to the seed. Then we have discussed about the embryo, which is a young plant, which further develop into the new plants. And from the embryo, from the baby radicle or the baby root, the radicle will give rise to the root, and the plumule will give rise to the shoot. And then we have cotyledon is also named as endosperm and testa is also named as the seed coat. So the other thing is we have discussed about this small opening, the small pore through which the water will enter, and this water will be absorbed by the seed for further germination. And there's a different conditions that is required for seed to germinate, and that conditions are basically the water. If a proper amount or a balanced amount of water is provided to the seed, then it will germinate, otherwise it will not. If a proper amount of light will be provided to the seed, then it will germinate, otherwise it will not. If a proper amount of temperature is provided to the seed, like for the plant, it is 25 to 30 degrees centigrade, and that temperature is basically the optimum temperature is provided to the seed, then it will start germinate, otherwise it will not germinate, it won't germinate. And the last thing is basically the air. In air, oxygen is basically provided to the seed for germination. These are the some conditions that are required for the germination, and germination terminology is comes from the word growth. Grow करना कहते हैं germination को. Okay, there is another thing that we just haven't discussed, and that is the epicotyle and the hypocotyle. Epi means above, and cotyle comes from the word cotyledon, and hypo mean below, and that comes from the cotyledon comes from the word cotyledon. एपिकोटाइल वो पार्ट होता है जो अबव द कॉटिलेडन जो स्टेम ग्रो करती है, या एम्ब्रियोनिक स्टेम जो कॉटिलेडन से अबव ग्रो कर रही है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल. एंड एम्ब्रियोनिक स्टेम जो बिलो द कॉटिलेडन ग्रो कर रही है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोकोटाइल. ठीक है, जो कि फर्दर रूट और शूट में कन्वर्ट होती हैं. अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखिए तो आपको एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल इजीली नजर आ जाएंगे. देयर इज द अबव द कॉटिलेडन जो ग्रो कर रही है स्टेम, दैट इज द एपिकोटाइल.
अबव पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम का, उसे हम एपिकोटाइल कह रहे हैं, एंड बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है दैट इज कोटिलिडन के बिलो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल। कोटिलिडन बाद में फर्दर लीव्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये कोटिलिडन बेसिकली जो सीड के ही पार्ट है कोटिलिडन जिसमें फूड स्टोर्ड है, ये फर्दर जब एक लीव्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लीव्स के अंदर अब वो कोटिलिडन एक अपनी पूरी उसने आपको डेवलप कर लिया एक लीव्स की फॉर्म में, और वो फिर उसी फॉर्म में उसको फूड और न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता जा रहा है। जो पत्तों को न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल रहे होते हैं उनके अंदर कोटिलिडन से मिल रहे हैं, क्योंकि उसके सीड के अंदर जो कोटिलिडन था अब वो लीव फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब मेजर बात आ जाती है, द टॉपिक इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द जर्मिनेशन। जर्मिनेशन वैसे होती क्या है कि जर्मिनेशन के अंदर माइक्रोपॉयल के थ्रू जैसे ही वाटर सीड एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर एब्जॉर्ब करने के रिजल्ट में रेडिकल जो है वो क्या करेगा, रेडिकल से रूट अराइज होना शुरू हो जाएगी, और एपिकोटाइल से या प्लोम्यूल से शूट अराइज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वंस द वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड न्यूट्रिएंट्स विल बी एब्जॉर्ब बाय द सीड। जैसे सीड ने न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, तो उसके रिजल्ट में रेडिकल से रूट निकलना और प्लोम्यूल से शूट निकलना शुरू हो जाएगी। जैसे आप सिंपल एग्जांपल लें तो आप अपने लॉन में जब भी कोई प्लांट ग्रो करते हैं, तो बहुत सारे प्लांट आप ग्राफ्टिंग, लेयरिंग या कटिंग वगैरह से ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए यू सो द सीड, और अगर सीड को प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन, वाटर, टेम्परेचर, लाइट वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो दैट विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट वॉन्ट। आप देखेंगे कि वो सीड जर्मिनेट ही नहीं किया, वो पौधा निकला ही नहीं है, या उस पौधा अगर वो फ्रूट वाला प्लांट था तो उस पर फ्रूट नहीं निकल रहे हैं। ओके, द अदर थिंग बिफोर गोइंग टू डिस्कस द अदर टॉपिक, यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट कि ओव्यूल से जो है, ovule is basically the female reproductive part of the flower. So ovule will convert it into the seed and ovary will convert into the fruit. So this is basically, एक अगर फ्रूट आप खा रहे हैं और उसके अंदर आपको बहुत सारे सीड्स नजर आ रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली द फ्लावर पार्ट, फ्लावर ओव्यूल। ठीक है, और अगर उसके अंदर जो है वो फ्रूट जो है दैट इज द फ्लावर ओवरी। अब जर्मिनेशन के दो मेथड हैं, वन इज कॉल्ड एज द एपीजील जर्मिनेशन एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज द हाइपोजील जर्मिनेशन। ये डायग्राम से आपको क्लियर नहीं चला जाएगा। जैसे ही आपने सीड को सो किया, सीड को सो करने के बाद सॉइल के अंदर, तो जो जर्मिनेशन दो तरीके से होती है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जो एपीजील जर्मिनेशन मेथड के थ्रू ग्रो करेंगे, जैसे कि सनफ्लावर वगैरह, जैसे कि ओकरा, भिंडी वगैरह जो है, या कॉटन वगैरह है, वो एपीजील मेथड के थ्रू जर्मिनेट करेंगी। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं या वेजिटेबल्स या क्रॉप्स वगैरह होती हैं जो कि हाइपोजील मेथड के थ्रू ग्रो करती हैं। अब हमें ये देख, जैसे कि पी वगैरह या वीट वगैरह जो गंदम आप खाते हैं, दैट विल ग्रो विद द मेथड कॉल्ड एज हाइपोजील जर्मिनेशन। एपीजील जर्मिनेशन के अंदर बेसिकली इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि हाइपोकोटाइल जो है वो इनलार्ज होता है, एपी के अंदर ऑपोजिट है, एपीजील के अंदर, एपी मीन अबव, इसके अंदर हाइपोकोटाइल ग्रो करेगा। और हाइपोकोटाइल क्या है, दैट इज द पोर्शन दैट इज बिलो द कॉटिलेडन। ठीक है, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, तो कॉटिलेडन के बिलो ये जो हाइपोकोटाइल है, ये जो स्टेम का पार्ट है, ये ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देगा और ये हुक में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इतना ग्रो करेगा, और जिसके रिजल्ट में, और हाइपोजील के अंदर बेसिकली अपोजिट होगा, दिस इज द एज, तो एपिकोटाइल इनलार्ज होगा एज कम्पेयर टू द हाइपोकोटाइल। इसके अंदर जो स्टेम का ये वाला जो पार्ट है ये ज़्यादा इनलार्ज होगा, और कॉटिलिडन इस हाइपोजील के अंदर ज़मीन के अंदर रहेंगे, सॉइल लेवल के सॉइल सरफेस के अंदर रहेंगे, जबकि एपीजील जर्मिनेशन के अंदर दूसरा डिफरेंस आप ये देखेंगे कि कॉटिलिडन अबव द सॉइल सरफेस ग्रो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब ऐसी क्रॉप्स जैसे कि भिंडी वगैरह है, या जैसे कि सनफ्लावर वगैरह है, तो उसके अंदर जो हाइपोकोटाइल वाला पार्ट है, दिस हाइपोकोटाइल पार्ट तो इनलार्ज होता ही होता है, लेकिन ये जो कॉटिलिडन है दैट ग्रोज अबव द सॉइल सरफेस, दिस इज द सॉइल लेवल, एंड द अबव द सॉइल सरफेस जब हाइट कॉटिलिडन ग्रो करना शुरू कर देता है। और इस जर्मिनेशन के अंदर ये बेसिकली दिस इज अ प्रैक्टिकल वर्क, लेकिन बट थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एपीजील जर्मिनेशन एंड द हाइपोजील जर्मिनेशन. If there is any difference, these are the notes that I am going to provide you. You can take the screenshot and let's study once again about the epigeel germination and the hypogeel germination. एपीजील के अंदर जब आपने जैसे बताया कि कॉटिलिडन जो है वो सॉइल सरफेस के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, इस प्रोसेस के अंदर हाइपोकोटाइल मैंने कहा था, जो कि हाइपोकोटाइल इज बेसिकली दैट पार्ट ऑफ द स्टेम दैट इज बिलो द कॉटिलिडन. It will elongate, that means it will grow and pushes the seed up. It will form a hook, एक हुक बन जाएगी. इसके अंदर कॉमन एग्जांपल एपिजिल जर्मिनेशन के अंदर लोबिया किया जाती है, सनफ्लावर किया जाती है और ओकरा किया जाती है. और हाइपोकोटाइल जर्मिनेशन के अंदर कॉटिलिडन जो है वो सॉइल सरफेस के नीचे ही रहते हैं. और हाइपोकोटाइल जर्मिनेशन के अंदर ऑपोजिट है, जैसे कि एपिकोटाइल जो है वो इलोंगेट होगा, उसके अंदर हाइपोकोटाइल के अंदर, एपीजील के अंदर हाइपोकोटाइल इलोंगेट करता था, जबकि हाइपोजील जर्मिनेशन के अंदर एपिकोटाइल पार्ट जो है वो पार्ट ऑफ द स्टेम जो है जो अबव द कॉटिलिडन है वो इनलार्ज करेगा, वो ग्रो करेगा.
इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाते हैं मटर, मकई या फिर गंदम। This was all about it. Hopefully the entire thing is clear. If not, please listen it again. आप दोबारा इसको सुनें, जहाँ पर confusion होती है leave a comment in the comment section. Do let me know जहाँ problem है, I will let you know. Feel free to reach out to me. Thank you so much. Allah Hafiz.